friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the entrance exam paper of BA LLB 5-year integrated course of Maharishi Dayanand University MDU Rohtak for the year 2023. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in your preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. देखिए अभी रिसेंटली 21 जून 2023 को ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था, तो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. सो यू कैन सी द पेपर कम्स लाइक दिस. टोटल पेजेस 29. सेट एक्स है, सीरीज ए. यू हैव टू फिल योर रोल नंबर इन वर्ड्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ईयर, साइन ऑफ इन्विजिलेटर. 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है एंड 75 मिनट्स है. एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. So question number 1 is, in India seat for women are reserved in. तो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कहाँ पर होती हैं? ये होती हैं पंचायती राज बॉडीज एंड म्यूनसिपैलिटी में. पंचायती राज बॉडीज के लिए प्रोविजन कहाँ पर है? ये है आर्टिकल 243D में. म्यूनसिपैलिटी के लिए है 243T में. पंचायती राज के लिए जो अमेंडमेंट आई थी कौन सी थी? 73rd अमेंडमेंट. म्यूनसिपैलिटी वाली 74th अमेंडमेंट. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए. 4 इज द आंसर. लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, कैबिनेट, इनमें नहीं होती हैं सीटें, बट वो दे सकते हैं. नेक्स्ट इज टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द मीनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स. Communal politics is based on the belief that one religion is superior to the other. Yes, people belonging to different religion can live together happily as equal citizen. नहीं, ये नहीं होता है, तो फिर डेमोक्रेसी हो गई. फिर फॉलोवर ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट्स वन कम्युनिटी, ये ठीक है. फिर स्टेट पावर कैन नॉट यूज टू स्टैब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर अदर. ये तो ये हो गई. फिर कम्युनल पॉलिटिक्स है तो. बट अगर आप देखें तो दीज आर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस. ये नहीं पूछने चाहिए बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट जस्ट 12th पास स्टूडेंट टू आंसर क्वेश्चंस लाइक दिस. एंड ऐसे क्वेश्चन होने भी नहीं चाहिए. हाउ एवर द आंसर इज 3 A and C. Next is 3. Which among the following statement about Indian Constitution is wrong? Prohibits discrimination on ground of religion, बिल्कुल ठीक है. Gives official status to one religion, no, ये wrong है. Provides all individual freedom to profess any religion, yes, बिल्कुल ठीक है. आर्टिकल 25 प्रोवाइड करता है ये चीज़. फिर ensure equality of citizens within religious communities, ये बिल्कुल ठीक है. wrong कौन सा हुआ इसमें? 2 is the answer. Next is 4. Which of these is not a good argument in favor of democracy? तो people feels free and equal in democracy, ये ठीक है. Democracy resolve conflict in a better way than the other, ये बिल्कुल ठीक है. Democratic government is more accountable to the people, yes, बिल्कुल ठीक है. Democracies are more prosperous than others, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है ये. तो 4 इज़ द आंसर. अगर आप देखें जो सऊदी अरेबिया और ये यूनाइटेड अरब अमीरात्स हैं, तो वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी नहीं है, बट दे आर मोर प्रॉस्परस देन अस इन सर्टेन वेज. Next is 5. Which of these provisions that a democratic constitution does not have? Power of the head of state, ये होता है. Name of the head of state, ये नहीं होता. नेम नहीं होता कोई, सिर्फ ये प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट ऑब्वियसली. तो नेक्स्ट है पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, यस. नेम ऑफ द कंट्री, यस, कंट्री का नाम तो रहता ही है. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 6. Which of these is not a good reason to say that Indian election are democratic? इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन दी वर्ल्ड, ये तो फैक्ट है, बट क्या ये इसका गुड रीज़न है? ये नहीं है. फिर इंडियाज इलेक्शन कमीशन इज़ वेरी पावरफुल, ये ठीक है. फिर एवरीवन अबव 18 ईयर हैज़ द राइट टू वोट, यस.
losing parties accept the electoral verdict. Yes, तो नॉट अ गुड रीजन, वन इज द आंसर। ये काफी टफ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इस बारी पॉलिटी के इन्होंने। नेक्स्ट 7, इफ यू आर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन कैन यू टेक ऑन योर ओन? सिलेक्ट द पर्सन यू लाइक एज अ प्राइम मिनिस्टर। नो, यू कैन नॉट डू दैट, वो तो इलेक्टेड ही रहेगा, है ना, और जो पार्टी वो डिसाइड करेगी। डिसमिस अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज मेजोरिटी इन लोकसभा, नहीं कर सकते। आस्क फॉर हिज कंसिडरेशन ऑफ अ बिल पास्ड बाय बोथ दी हाउसेज, ये बिल्कुल ठीक है, इसको आप जो है रिटर्न कर सकते हैं, तो ये आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। नॉमिनेट द लीडर्स ऑफ योर चॉइस, ये नहीं कर सकते। आंसर क्या रहेगा इसमें? 3 इज द आंसर। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कहाँ पर होता है? आर्टिकल 54 एंड 55 के अकॉर्डिंग। 54 में पावर है इलेक्शन की, बताया गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन 55 में बताया गया है। नेक्स्ट है 8, whom the following is a part of political executive, तो इसका आंसर है होम मिनिस्टर। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 9, which of the following statement about the judiciary is false? Every law passed by the parliament needs approval of the supreme court. नो, ये जरूरत नहीं होती, ये हो गया रॉन्ग, पहला ही फॉल्स है। जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन ए लॉ विच इफ इट गोज अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक है। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यस ये ठीक है। एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ राइट्स आर वायलेटेड, ऐसे बिल्कुल ठीक है। तो इसमें रॉन्ग कौन सा हुआ? 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंज टू एन एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री? कौन कर सकता है? मान लो कोई अमेंडमेंट करनी है कोई किसी लॉ में, तो कौन करेगा? ऑब्वियसली द पार्लियामेंट। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 11, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अवेलेबल। राइट टू वर्क इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट टू वर्क इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू एडुकेट लाइवलीहुड, दिस इज DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर, दिस इज आर्टिकल 29, दिस इज फंडामेंटल राइट। राइट ऑफ ब्रदरहुड, ये नहीं है। तो देखिए इसमें मैं कहूँ 2 आंसर हो गए, 1B और 3B। अगर ये लिखते कि मेंशंस इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, तब तो हो जाता 3 आंसर, जो कि आंसर की में दिया हुआ 3, बट आई वुड से कि 1B आंसर हो सकता है इसमें। क्वेश्चन ही गलत होना चाहिए, मार्क्स सबको मिलने चाहिए। नेक्स्ट 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन? फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ये फ्रीडम है। फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रेवोल्यूशन, नो, इसमें नहीं कर सकते। स्टार्ट अ मूवमेंट टू चेंज अ गवर्नमेंट, कर सकते हो। टू अपोज सेंट्रल वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कर सकते हैं। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 13, द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज नेशनल गवर्नमेंट गिव्स सम पावर टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, कोई ज़रूरी नहीं है। पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, यूनिटरी फॉर्म में। इलेक्टेड ऑफिशियल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये फेडरल सिस्टम में होता है। 4 वुड बी दी आंसर, बट ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। आई डोंट नो कि ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, क्या नॉलेज देखना चाह रहे हैं स्टूडेंट की। ये आप जो 12th पास करके आए हैं अभी अभी, उनसे आप सोच रहे हैं कि भाई वो जुडिशरी टाइप की जो UPSC में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस टाइप के आंसर करेंगे क्या वो लोग? नेक्स्ट इज 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन अ फेडरेशन द पावर ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर क्लियरली डिमार्केटेड, ये बिल्कुल ठीक है। फिर इंडिया इज अ फेडरेशन बिकॉज ऑफ द पावर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, ये बिल्कुल ठीक है। फिर श्रीलंका इज द फेडरेशन बिकॉज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, नो वी कैन नॉट से दैट। फिर इंडिया इज नो लॉन्गर अ फेडरेशन, नो इट इज स्टिल अ फेडरेशन। देखा ना, बिकॉज सम पावर स्टेट हैव बीन डिवोल्व्ड इन लोकल गवर्नमेंट, नो फिर क्या हो गया? ये हो गया रॉन्ग। तो आंसर वुड बी A and B, 3 is the answer. Again I would say this is a very tough question. बहुत डीप नॉलेज चाहिए इसके लिए, मतलब ऐसे क्वेश्चन UGC नेट या UPSC के पेपर्स में आते हैं, एंड आई थिंक ये जो है किसी UGC नेट के पेपर में से उठाया हुआ है। नेक्स्ट 15, इन डीलिंग विद सोशल डिवीजन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी? ये वहीं से क्वेश्चंस लिए हुए लग रहे हैं।
ड्यू टू पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इन अ डेमोक्रेसी सोशल डिवीजन गेट रिफ्लेक्टेड इन पॉलिटिक्स, ये बिल्कुल ठीक है। इन डेमोक्रेसी इट इज़ पॉसिबल फॉर कम्युनिटीज टू वॉइस देयर ग्रीवियंस इन पीसफुल मैनर, ठीक है। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, ऐसे ठीक है। फिर डेमोक्रेसी ऑलवेज लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डिविजन्स, नो, ये रॉन्ग है। अब देखिए जो 3 और 4 है ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, अगर ये ठीक है तो फिर ये ठीक नहीं हो सकती है ना, तो नोट करेक्ट पूछा हुआ है, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 16, व्हाट इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए यू कैन इमेजिन, अब मैं यहाँ पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ। सो जो भारतीय जनता पार्टी है जो किसने प्रेजेंट किया था, फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर दीन दयाल उपाध्याय, ओके। अब जिन्होंने गाइडिंग फिलोसफी बताई तो कौन सी थी, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, 3 इज द आंसर, मतलब एकात्म मानववाद, इंटीग्रल एकात्म मानववाद। नेक्स्ट 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमंग द पीपल, ये बिल्कुल ठीक है। पार्टीज आर ऑफ्टन रॉक्ड बाय स्कैंडल्स इन्वॉल्विंग टॉप पार्टी लीडर्स, यस यू कैन से दैट एज वेल। फिर पार्टीज आर नॉट नेसेसरी टू रन द गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट रन करने के लिए पार्टी की जरूरत रहती ही है इन डेमोक्रेसी, बट वैसे तो अगर देखें तो गवर्नमेंट रन करने के लिए पार्टीज की जरूरत नहीं होती कई जगह, है ना, जहाँ पर मोनार्की है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं कहूँगा कि ये स्टेटमेंट थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, ये क्वेश्चन भी, बट अगर देखें तो 2 वुड बी द आंसर, ए एंड बी अगर ये रॉन्ग देख रहे हैं हम, बट ये परफेक्टली रॉन्ग भी नहीं है, परफेक्टली राइट भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस बनाए हुए हैं इस बारी। नेक्स्ट 18, इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेसिंग डेमोक्रेसी विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट। तो डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, यस। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है, यस। इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ है, यस। मेजोरिटी रूल, नो। 3 इज द आंसर, ये ऑड है। नेक्स्ट 19, स्टडीज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटीज इन डेमोक्रेसी शो दैट डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर। देखिए यहाँ पर आप इनइक्वालिटीज की जो है स्टडी कर रहे हैं इन डेमोक्रेसी, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी, ये तो बिल्कुल यही स्टेटमेंट हो गई इसी की। डू नॉट एग्जिस्ट अंडर डिक्टेटरशिप, नो, जरूरी नहीं है। डिक्टेटरशिप इज बेटर देन द डेमोक्रेसी, नो। तो आंसर क्या रहेगा, 2 इज द आंसर। Next 20, in the context of democracies, which of the following idea is correct? Democracies have successfully eliminated. थोड़ा क्वेश्चन ये क्लियर नहीं बनाया हुआ है, या तो ये लिखे यहाँ पर कि आप ये क्या पूछ रहे हैं, टोटल इसको पूरा सेंटेंस की तरह बनाए तब तो पता भी चले कि भाई हाँ ये क्या पूछना चाह रहे हैं। तो आइडियाज पूछ रहे हैं, कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी विच आइडिया इज करेक्ट। फिर लिखा हुआ है डेमोक्रेसी हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड। अब इसके लिए आइडिया चाहिए है या फिर इन आइडियाज में से बता रहे हैं कि कौन सा अप्रोप्रिएट है, या फिर ये जो है इसके आगे का पूछ रहे हैं, डैश दी फॉलोइंग कर दिया यहाँ पर, तो इसमें से कौन सा ठीक है। अगर हम एक सेंटेंस देखें पूरा, अगर देखिए यहाँ पर इन्होंने डॉट्स लगा दी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कनेक्शन यहाँ पर थोड़ा हट गया है ना, कनेक्शन होता तो यहाँ पर डैश लगाना चाहिए था, डैश लगा के फिर ये करते हैं। तो डेमोक्रेसीज हैव सक्सेसफुली एलिमिनेटेड द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। अब अगर देखिए हम तो जो सेंटेंस ठीक बन रहा है वो बन रहा है 4 वाला, 4 इज द आंसर, बट ठीक से बनाना चाहिए क्वेश्चन। अब ये हो गए पॉलिटी के क्वेश्चन, अब आगे रीजनिंग के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, इफ इन सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBESBT, कैसे किया हुआ है, 1 स्टेप फॉरवर्ड, ABDERSABST, है ना, बन गया ना सेम। तो बॉम्बे का कैसे बनेगा, देखिए इसमें CPNCBZ, देखिए CPNCB, इसमें भी यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी ये सेम है, जो लास्ट लेटर है ये डिफरेंट है। 2 इसका आंसर रहेगा। Next 22, 4 usual dice are thrown on the ground. The total number on the top faces of these 4 dice is 13, as the top faces showed 4, 3, 1, 5 respectively. अब जो नीचे डाउन फेसेस हैं, व्हाट इज द टोटल ऑफ द फेसेस टचिंग द ग्राउंड। अब देखो जैसे 1 के सामने कौन आता है, 6, 2 के सामने 5, 3 के सामने 4, ऐसे ही होता है ना डाइस में, जो लूडो वूडो खेलते हो देखना, उसमें ऐसे ही जाता है ना। अगर ऊपर अब 4 आ गया तो 3, 1, 5 है, तो क्या बनेगा, यहाँ क्या आ गया, 3, 4, 6, 2,
कितना बन गया 15। 3 इज द आंसर, वेरी इजी। नेक्स्ट 23, सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। अब संख्या का चयन करना हमने, तो 7 का 32 कैसे आया, फिर 35 का क्या आएगा। तो देखो 7 इंटू 5 कितना होता है 35 माइनस 3 32। अब 35 इंटू 5 माइनस 3 175 माइनस 3 172, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 24, अब बताना है रिलेटेड वर्ड ऑल्टरनेटिव। पिजन पीस मतलब ये सिंबल है, सिंबल पूछ रहे हैं ये, तो क्राउन का हेड का सिंबल है नहीं, लॉरेल्स विक्ट्री का नो, वॉर लिबर्टी का नो, व्हाइट फ्लैग किसका सिंबल है सरेंडर करने का, तो ये ठीक हो जाएगा, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 25, अब ये बताना है कि कौन सा था क्लस्टर जो है सेम वे सेकंड लेटर क्लस्टर से रिलेट करता है। तो देखो कैसे किया हुआ है ये, इन्होंने उल्टा कर दिया। ओ के बाद क्या आता है पी, एम के बाद एन, एल के बाद एम एंड पी के बाद क्यू, इसको लिख दिया फिर पी एन एम क्यू, है ना। ऐसे क्या लिखेंगे, टी एम के बाद क्या आता है एन, डी के बाद ई, यू के बाद वी, तो टी एन ई वी, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 26, विच वन ऑफ द गिवन आंसर वुड बी मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो मेमोरी पावर कैसे रहती है, बिट्स में, फिर बाइट्स में, फिर किलो, फिर मेगा, फिर गीगा, फिर टेरा, है ना। तो फिर पहले क्या आएगा किलो मेगा बी ए देखो एक ये रहा, फिर गीगा, फिर टेरा, बी ए डी सी, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 27, ये क्या पूछ रहे हैं अब, डायरेक्शंस। तो डायरेक्शन बना लो पहले, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। तो ए मैन पॉइंटिंग ए वॉक्स 20 मीटर टू द नॉर्थ, ये मान लो यहाँ पर है 20 गया इधर नॉर्थ में, फिर लेफ्ट मुड़ गया, कितना चला 40, और फिर से लेफ्ट मुड़ गया, कितना चला 20, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 20 मीटर टू रीच पॉइंट बी। अब वो अपने पॉइंट से कहाँ पर है, फाइंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ये मान लो ए है अगर और ये बी है, तो डिस्टेंस कितना हो गया 60 का ऑब्वियसली, और कहाँ पर है ये वेस्ट में, तो 60 मीटर वेस्ट, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 28, विच वन ऑफ द गिवन आंसर वुड बी मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो सबसे पहले आप जो है सीड बोते हो, ठीक है, फिर वो प्लांट बनता है, फिर उस पर जो है लीफ आती है, और वो फिर आता है फ्लावर, फिर जो है फ्रूट आता है, तो क्या बन गया CADE, तो CADEB, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 29, अब मैथ्स के क्वेश्चन है ये, मंजीत एंड पवन स्टार्ट्स टुगेदर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट्स। देखिए ये मंजीत है, ये है पवन, ओके, सर्टेन पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन मोटरसाइकिल। तो मंजीत की स्पीड है 60 पर आवर एंड पवन की है 44 पर आवर, यही है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 15 मिनट्स। 15 मिनट के बाद डिस्टेंस कितना है इनका। मान लो अगर डिस्टेंस x है कि नहीं, सो लेट देयर नॉट बी x। क्यों, उसका एक रीज़न है, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बड़ा इजी है। कैसे, 15 मिनट है ना, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही है फॉर्मूला। अब डिस्टेंस मान लो अगर x करोगे तो स्पीड ये आ जाएगा ऑब्वियसली, तो पहले आप जो है क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करोगे, कोई ज़रूरत नहीं है, 60 का 1/4 कर दो, 44 का 1/4 कर दो, कितना हो गया 15, इसका 11 प्लस कर दो, कितना आ गया 26 किलोमीटर, 3 इज़ दी आंसर। XYZ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कई जगह करने की ज़रूरत नहीं होती, करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे करोगे, दोनों को ऐड करोगे, 104 आ गया, कितनी स्पीड होगी, टोटल स्पीड कितनी है 104, डिस्टेंस डैश है, और टाइम कितना लगा 60/15, मतलब 4 को कर दोगे तब भी 26 आ जाएगा। नेक्स्ट 30, कंप्लीट द सीरीज करनी है पूरी। अब तो ये देखो क्या किया हुआ इन्होंने, ये 1024 डैश, पहले यहाँ चेक कर लो कैसे किया हुआ है। ये 1600 है, 1600 में कितना ऐड किया इन्होंने 400, मतलब 1.25 इंटू कर दिया ये, ठीक है, मतलब 1/4 ऐड कर दिया सेम में। अब
2000 का 1/4 कितना है? 500 कितना आया? 2500। 2500 का 1/4 कितना है? 625। 3125 आ गया। तो ऐसे ही 1024 का 1/4 कितना है? 256। कितना आ गया? 1280। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 3। देखिए बड़ा इजी है। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6 36। ये मतलब इक्वल टू टोटल है ये। 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 140। ऐसे ही 9 इंटू 2 18, 18 इंटू इतना क्या आएगा? 1। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 32। अब इन्होंने कैसे किया हुआ देखो इन्होंने। 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 2 6 26। ऐसी 4 इंटू 5 30, 30 और ये 12 प्लस 42। ऐसी 6 इंटू 7 42 प्लस 20 कितना हो गया? 62। 3 इज द आंसर। Next 33. If a cube is made by mixing 64 small cubes, then two faces of how many small cubes will appear? मतलब ये कह रहे मान लो कि स्टैक लगा दिया आपने क्यूब्स का, ठीक है, ये सारी क्यूब्स है, टोटल कितना है ये? 64। अब दो फेस कितने दिखेंगे? मतलब दो फेस किसका दिखेगा? ऑब्वियसली जो इस कोने पे जो होंगे ना उनका दिखेगा, है ना। ये इस कोने पे 2 फेस दिख गए इनके। ऐसे ही इधर वाला उसके उधर वाला, ऐसे ही इधर वाले और इधर वाले। तो ऐसे कितने हैं? तो सरफेस कितनी हुई इसमें? टोटल कितनी सरफेस है? 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। 6 सरफेस है और 2 फेसेस की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। 24 हो गया। 2 इज द आंसर। Next 34. Looking in the mirror, it seems that clock is showing 6:30. What is the actual time of the clock? अभी तो आप इजीली बता सकते हो। देखो मान लो कि ये क्लॉक है और इसमें ये 6:30 है। अब इसको अगर देखोगे आप तो कैसे बनेगा? ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, मतलब 5:30 हो रहे हैं। 2 इज द आंसर। Next 35. In the year 2016, Republic Day was celebrated on Friday. Then in the year 2020, on which day Republic Day was celebrated? अब देखो 2016 था वो था एक लीप ईयर, और मैंने पहले भी डिस्कस किया है कई बार ये प्रीवियस ईयर। अगर आप देखेंगे वीडियो 2022 की तो वहाँ पर भी काफ़ी क्वेश्चन थे लीप ईयर टाइप के। तो लीप ईयर में 2 और डे होते हैं, 52 वीक्स प्लस 2, 364 प्लस 2, 366, ठीक है ना। तो जो वीक्स में कट गए वो कट गए, जो बाकी बच जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ओड डेज। तो इसमें है 2 ओड डेज 2016 में, 17, 18, 19 एंड 20। ऐसे ही करना है ना। 20 का तो लेंगे नहीं बिकॉज स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, 26 जनवरी है रिपब्लिक डे। तो 2 इसमें 1 2 3 कितने हो गए? तो 5 ऐड कर दो आप फ्राइडे के बाद। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो 1 2 3 4 5 कितना आ गया? वेडनेसडे। 2 इज द आंसर। 36. Alok is 300 days older than Varun and Sandeep is 52 weeks older than Alok. तो देखो सबसे बड़ा कौन है? संदीप, फिर आलोक, फिर वरुण, ठीक है। तो ये है 52 वीक्स ओल्डर, मतलब इसमें कोई ऑड डे नहीं है। ये 300 डेज है, तो इसको कर लो पहले वीक में, कितना हो गया? 42 वीक्स प्लस 6 डेज, मतलब 6 ऑड डेज हो गई इसमें। अब संदीप अगर बोर्न हुआ है कब? ट्यूसडे को। तो वरुण का कैसे निकालेंगे? यहाँ 0 था, यहाँ 6 था, तो ट्यूसडे में 6 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? ट्यूसडे है तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 1 2 3 4 5 6 मंडे। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 37. All the members of tennis club are members of badminton club too and no woman plays badminton. अब सारे जो क्लब मेंबर हैं टेनिस वाले वो ऑल्सो मेंबर हैं किसके हैं? बैडमिंटन के भी, है ना। अब कोई वुमन जो है वो बैडमिंटन नहीं खेलती, इसका मतलब क्या हुआ? सम वुमन प्ले टेनिस, नो ये नहीं हो सकता, दूर है ना वो। नो मेंबर ऑफ टेनिस प्ले बैडमिंटन, ये तो गलत हो गया। फिर सम वुमन आर मेंबर्स ऑफ टेनिस, नो। तो ये नो विमेन
इज मेंबर ऑफ टेनिस क्लब, ये बिल्कुल ठीक है, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 38, अब बताना कितने ट्राइंगल हैं। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, जितने भी स्पाइक्स होंगे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, डबल कर दो बस, हो गया 10, 3 इज द आंसर। और अगर आपने काउंट करना है कैसे करेंगे, देखो पहले बनाओ, एक ट्राइंगल बन गया, कितने एक ट्राइंगल है, अब कितने हो गए, 2 या 3, 2 आपने ऐड कर दिए इसमें तो एक हो गया 3, अब कितने हो गए, मतलब जो भी एक स्पाइक लगाओगे डबल हो जाएगा उसका। अब कितने हो गए, 1 2 3 2 6 हो गए, 8 एंड देन 10, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 39, अब बताने में स्ट्रेट लाइनें कितनी हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 तो यही होगी, 1 2 3 4 है ना, 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 40, अब मिरर इमेज बतानी है तो इजीली कर सकते हो आप। देखो इसके पंख देखो, पहले की तरफ पीछे की तरफ है, इसमें देखो 2 ही मुंह है, एक ये है एक ये, इसमें अंदर की तरफ मुड़े, ये होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसमें 4 वाली इमेज ठीक हो गई, तो आंसर क्या है 1, OMR शीट में 1 भरना था। नेक्स्ट है 41, अब इंग्लिश के आ गए ये, एरर बताने हैं। दीज काइंड ऑफ अपीरल, दीज काइंड्स ऑफ अपीरल होता है, तो ये हो गया रॉन्ग, 1 ही गलत हो गया इसमें। सीम्स टू बी एक्सपेंसिव बट इज रिलेटिवली अफोर्डेबल टू मेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट 42, नीदर अजय नोर हिज ब्रदर कैन टाइप फास्टर देन, देखिए जहाँ पर भी ये नीदर नोर आता है तो वहाँ पर मी चेंज हो जाता है, किसमें, आई में। देखिए मी जो है ना ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है, और आई क्या होता है, नॉर्मेटिव प्रोनाउन, तो आई आना चाहिए यहाँ पर, 4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 43, बीइंग अ सनी डे वी वेंट आउट फॉर पिकनिक इन द पार्क, तो देखिए वी वेंट आउट फॉर पिकनिक इन द पार्क, ये बिल्कुल ठीक है तीनों। बीइंग नो, इट्स बीइंग ए सनी डे, इट बीइंग अ सनी डे ये आना चाहिए, तो 1 इसमें एरर है। फिर 44, द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच, नो दी फ्रेंच, किसको रहा है स्पेसिफिकली बताना है ना, दी फ्रेंच, तो 2 आंसर हो गया। इन दी बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू में कौन हारा था फ्रेंच साइड से, नेपोलियन, वाटरलू में हार गया था वो। नेक्स्ट 45, एन ओल्ड मैन इन द क्राउड वॉर्न जूलियस सीजर अबाउट द डेंजर्स ऑफ डेथ ऑन सर्टेन डे, देखिए ऑन ए सर्टेन डे आना चाहिए, 4 इसमें एरर हो गया। नेक्स्ट 46, इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स, देखिए टू गिव एडवाइस होता है बिकॉज ये अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो यहाँ पर एन नहीं आएगा, तो ये हो गया रॉन्ग, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 47, द जनरल एंड हिज वाइफ वर इन्वाइटेड फॉर द चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन, नो 4 नहीं होता, टू द चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन एट आवर स्कूल होता है, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 48, नो सूनर डिड द बेल रंग, नो सूनर डिड है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, बेल रिंग द बॉय केम आउट ऑफ द क्लास, 2 इसमें रॉन्ग हो गया, एरर। नेक्स्ट 49, हाउ लॉन्ग इज शी वर्किंग इन द ऑफिस, अब देखिए ये सेंटेंस जो किस में पूछ रहे हैं, हाउ लॉन्ग मतलब प्रेजेंट भी है और कंटिन्यूस चल भी रहा है, वो पहले भी था तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस हो गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो हाउ लॉन्ग इज शी वर्किंग इन द ऑफिस, तो इसमें क्या आना चाहिए, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वर्किंग इन द ऑफिस, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 50, अजय टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज बॉस, अब देखिए ये इनडायरेक्ट स्पीच है, तो ये जो ही रोट क्या हो जाएगा, ही हैड रिटन ए लेटर टू हिज बॉस फॉर अ सर्टेन रीजन, 2 इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 टू 55, अब बताना इसमें कौन सा वर्ड जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड है। हेलुसिनेशन बिल्कुल ठीक है, बम्बार्डमेंट ठीक है, ये होता है रेंडेजवस, 3 इसमें आंसर रहेगा। देखिए ये एक फ्रेंच वर्ड है, ओके, और इसको क्या बोलते हैं, अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे कैसे करेंगे, रोंडा वू, इसका मतलब क्या होता है मीटिंग और डेट, ठीक है,
रोंडावू बोलते हैं इसको, रोंडावू इन फ्रेंच लैंग्वेज। एमेरिचस, ये बिल्कुल ठीक है, एमेरिटस नहीं बोलते, एमेरिटस नहीं होता है, एमेरिचस होता है। नेक्स्ट 52, ग्रेटिफिकेशन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ, डिफेक्शन ठीक लिखा हुआ। वैक्यूम, ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है ये, अगर आप, मैंने वीडियो डाली हुई है 2022 के पेपर में से, बिल्कुल डिट्टो उठाया हुआ है। वैक्यूम में डबल सी नहीं आएगा, डबल यू आता है। 3 इसमें आंसर रहेगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट 53, अपार्थीड, अब ई आएगा पहले, आई बाद में आएगा, तो यही गलत हो गया, 1 इज द आंसर। फिर 54, ट्रेपिडेशन या फिर ट्रेस पासिंग में एक ऐसा आएगा, 2 इज द आंसर, एब्सर्ड फिल्म ट्रॉफिक, ये ठीक है। नेक्स्ट 55, ओमिनस या फिर एक्रीमोनियस से ठीक है, क्यूरेटिव ठीक है। बिजार, डबल आर आएगा इसमें आई की जगह, तो 4 इज द आंसर। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 56, वन हु डिवोट्स हिमसेल्फ टू प्लेजर, कौन होता है वो? हेडोनिस्ट, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 57, ए शॉर्ट स्टे एट प्लेस, क्या बोलते हैं उसको? सोजोन, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 58, ए प्लेस वेयर वेपन्स एंड एमुनेशंस आर स्टोर्ड, क्या बोलते हैं उसको? इंग्लिश में बोलते हैं उसको आर्सेनल, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 59, नोन ओनली बाय अ फ्यू, कौन होता है? एसेट्रिक, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 60, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, प्लेजियरिस्ट, 1 इज द आंसर। जब रिसर्च करने जाएंगे तो क्या करवाना पड़ता है आपको? प्लेजरिज्म चेक, कि भाई कितना कॉपी कर रखा है ना। एक इसका आंसर रहेगा। अगला है 61, अब आगे हिंदी। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 62, दीप शिखा के रचयिता का चयन कीजिए, किसने लिखी दीप शिखा? महादेवी वर्मा ने, 2 इज द आंसर, 2 इसका उत्तर रहेगा। अगला 63, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र, ऑब्वियसली उपसर्ग पहले आएगा, प्रत्यय बाद में आता है, तो प्र है यहाँ पर, ये 2 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 64, निर्वासित में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? पहले क्या पूछा था? उपसर्ग, तो प्रत्यय है तो आखिर में क्या आता है? इत, 4 इसका उत्तर रहेगा। अगला 65, शुद्ध शब्द छांटिए, अभिषेक, अभिषेक कैसे लिखते हैं? 3 वाला, तीसरा वाला, 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 66, अशुद्ध शब्द छांटिए, तो अक्षर ठीक लिखा हुआ है, अध्येता ठीक लिखा हुआ है। अनुग्रहित, गृहित, तो ये गृहित होना चाहिए, ऐसे री आना चाहिए नीचे, रह नहीं आएगा, तो अशुद्ध हो गया इसमें, ये 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 67, काल का पर्यायवाची क्या है? समय, बोलते हैं ना काल चक्कर, काल का समय चक्कर, 1 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 68, कौन मृग का पर्यायवाची नहीं है? हिरण, कुरंग, मृग, देखो मृग तो मृग ही लिख दिया यहाँ पर, तो ये दोनों तो है ही, और ये हो गया ऑब्वियसली। बचा क्या? शशांक, शशांक क्या होता है? चांद, चंद्रमा, चंद्र। अगला है 69, अथ के सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। अथ मतलब शुरू करना, इति मतलब खत्म करना, समाप्त करना, 2 इसका उत्तर रहेगा। सारे देखो शब्द जो है एक समान लिए हुए हैं, लेकिन जो ठीक जो उत्तर रहेगा वो इति रहेगा। अगला 70, इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत युग्म है कौन सा? कृत्रिम प्रकृत, यस, ओरस, जारज, संधि विग्रह, अनग, सनग, अनग क्या क्या होता है? अनग, अग, अग, अनग, 2 इसका उत्तर रहेगा। अगला 71, इनमें से कौन अर्थालंकार नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं अर्थालंकार? अनुप्रास अलंकार, 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 72, सरणी शब्द के सही अर्थ का चयन कीजिए। सरणी का मतलब क्या होता है? मार्ग, 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 73, टाट उलटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दिवाला निकालना, 2 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 74, शिवार्पण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 75, धर्माधर्म में कौन सा समास है? द्वंद्व, क्योंकि धर्म और अधर्म दोनों शब्द मिला के बना दिया तो द्वंद्व समास आ गया।
एक इसका उत्तर रहेगा। फिर है 76, उच्छ्वास का संधि विच्छेद कीजिए। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास, 2 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 77, उत्तराधिकार में मिली जायदाद। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। क्या बोलते हैं उसको? पितृ आशीष या पैतृक संपत्ति, वंशदामनो। क्या इसका रहेगा? रिक्त, 4 इसका उत्तर रहेगा। अगला 78, जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो। क्या बोलते हैं उसको? उपयुक्त शब्द बताना है। विजित, जिसने की है वो कौन? विजेता। जिस पर की है वो कौन? विजित, 4 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 79, किस शब्द को स्त्रीवाची बनाने के लिए नी प्रत्यय का प्रयोग करना होगा? तो क्या लुहारनी होगा? नो। ठाकुरनी होगा? नो। दर्जनी होगा? नो। ऊँटनी हो सकता है ना, ऊँट ऊँटनी। तो 4 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 80, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में सही अलंकार का चयन कीजिए। कौन सा है? ये यमक अलंकार है ये, 3 इसका उत्तर रहेगा। डिट्टो क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन 2022 के पेपर में। कब तो दिखा देता हूँ उनको। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 41, ये MDU के ही LLB 3 ईयर के पेपर में जो है आया हुआ था। तो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से भी ले लेते हैं, तो सारे पेपर करने चाहिए ये। तो 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला 81, नेक्स्ट 81, ऑन विच कॉन्टिनेंट डिड एन अपराइट वॉकिंग एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग ओरिजिनेट? तो सीधे चलने वाले मानव के पूर्वजों की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई थी? अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप, 3 इसका उत्तर रहेगा। कहने को सब ये थ्योरीज हैं, मतलब कहते हैं कि पहले इंसान, पहले बंदर था, तो मतलब कुछ बंदर रह गए और कुछ बंदर इंसान बन गए। अगला है 82, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ 200 मिलियन ईयर्स अगो? तो 200 मिलियन मतलब 20 करोड़ साल पहले। तो वो था पेंजिया, पेंजिया बोलते थे उसको। 3 इज द आंसर, 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला 83, इन विच इंडियन रिलीजन इज कड़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए वर्शिप सर्विस? क्या किस में होता है? सिखिज्म में। जाते हो तो मिलता है ना प्रसाद, कड़ा प्रसाद बोलते हैं उसको, कड़ा प्रसाद, 1 इसका उत्तर रहेगा। अगला 84, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। कहाँ पर? मालाबार में, 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला 85, द थार डेजर्ट कंटिन्यूज इनटू पाकिस्तान एंड कॉल्ड एज चोलिस्तान डेजर्ट। अगेन रिपीट क्वेश्चन फ्रॉम MDU 5 ईयर LLB एग्जामिनेशन पेपर ऑफ 2022, 4 इज द आंसर। अब जिसने मेरी वीडियो फॉलो की होगी, मैंने बनाई हुई है 2022 वाली वीडियो, और पेपर से पहले ही अपलोड कर दी थी ऑब्वियसली। तो जो एग्जाम पेपर देख के गए होंगे वो ऑब्वियसली वो वहाँ से कम 4-5 क्वेश्चन तो कर ही आए होंगे। तो 4 इसका उत्तर रहेगा। अगला है 86, पोल्यूटेंट्स दैट आर इंट्रोड्यूस इनटू द एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन एक्टिविटी आर कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट्स। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसलिए बोलते हैं मानव द्वारा किया गया जो प्रदूषण है मानव जनित प्रदूषण हो गया ना। तो 3 इसका उत्तर हो गया। अगर मान लो अंग्रेजी में नहीं समझ में आया तो हिंदी में देख लो। अगला 87, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, पीतल किससे बनता है? जिंक और तांबे से, 4 इसका उत्तर रहेगा। अगला 88, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट इज, सर्वाधिक कौन सी धातु मिलती है? एल्यूमिनियम, 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला 89, संगम लिटरेचर इज एसोसिएटेड रिस्पेक्टिवली विद, तमिलनाडु से रिलेट करता है तमिल लैंग्वेज से, 3 इसका उत्तर रहेगा। तमिलनाडु। अगला है 90, एंशिएंट रूलिंग डायनेस्टीज पांड्या एंड पल्लव आर एसोसिएटेड विद ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। देखिए ये वेस्टर्न कोस्ट है, तो इधर इस वाले में थे पांड्या एंड पल्लवा। तो 1 इज द आंसर, 1 इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट 91, विलियम जोन्स एंड मोर्टिमर व्हीलर आर एसोसिएटेड रिस्पेक्टिवली विद एशियाटिक सोसाइटी एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 2 इज द आंसर। अगला है 92, द टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय, किसने दी थी ये? सेलमैन वॉक्समैन, 3 इसका उत्तर रहेगा।
अगला 93, हु कॉइन्ड द टर्म बायोटेक्नोलॉजी, ये वर्ड किसने दिया है बायोटेक्नोलॉजी का? कार्ल अर्की ने। एक इसका उत्तर रहेगा। अगला है 94, मिल्क टेस्ट सावर व्हेन इट केप्ट इन ओपन फॉर सम टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो खुले में रखने से जो दूध अगर खट्टा हो जाए, मतलब बोलते हैं दूध फट गया, रीजन क्या होता है उसका? लैक्टिक एसिड बच जाता है उसमें, तो 2 इज द आंसर। अगला 95, ए कॉमन फ्लोरेसेंट ट्यूब कंटेन्स, क्या होते हैं उसमें? मर्करी वेपर्स एंड इनर्ट गैस, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 96, इन विच स्टेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर लोकसभा, सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? मध्य प्रदेश से, 3 इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट 97, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन, देखिए रिसेंट ही गया ना, 22 मई, 4 इसका उत्तर रहेगा, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 98, इन विच नेशनल पार्क द चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया वर हाउस्ड इन, बड़ा ही न्यूज़ में था अभी ये, कूनो नेशनल पार्क, 2 इज द आंसर। एक तो मर भी गया ना वहाँ पर, चीता लेके आए थे जो। नेक्स्ट 99, इंडिया इज क्लासिफाइड रिसेंटली बाय वर्ल्ड बैंक, कैसी इकोनॉमी? लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी, 4 इज द आंसर। अगला है 100, विच इज द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? वेस्ट बंगाल, 4 इज द आंसर। देखिए इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो वेस्ट बंगाल है, बट अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में। इन ऑप्शन में 4 आंसर रहेगा, 4 इज द आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के 2023 के 5 ईयर BA LLB एंट्रेंस एग्जाम पेपर को पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस और कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.